Hello friends and dear students, welcome back to my YouTube channel SS Pediatrics. My today's topic is congenital heart defect. Congenital means by birth as the baby delivered, और जैसे बेबी डिलीवर होता है उसके साथ अगर बाय बर्थ बेबी को कोई डिफेक्ट है दैट इज़ नोन एज कॉन्जेनिटल डिफेक्ट, और वो अगर हार्ट का है तो हम उसे कहेंगे कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट. सो आज के लेक्चर में और फीटल हार्ट सर्कुलेशन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी एंड नॉर्मल हार्ट सर्कुलेशन कैसे होता है, और जैसे बेबी डिलीवर होता है तो क्या चेंजेस आते हैं एकदम से बच्चे के हार्ट सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे. तो ये सभी आज के लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूँगी. सो लेट्स start with the topic fetal circulation. fetal circulation मैं आपको PPTs भी दिखाऊंगी और एक एनिमेटेड वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी. fetal circulation आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. यहाँ पे प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के थ्रू यहाँ पे अम्बिलिकल वेन है जिसके थ्रू जो ब्लड है वो fetal सर्कुलेशन में जाएगा. अभी ये प्रोसेस कैसे होता है वो मैं आपको जो है वो PPT की हेल्प से बताती हूँ. Fetus is connected by the umbilical cord to the placenta, through which it receives all the necessary nutrition, oxygen and life support, and sent back the waste product through the placenta to the mother's blood. Blood from the right atrium, most of it flows through the foramen ovale. Foramen ovale is a connection between the right atrium to the left atrium. So most of it flows from the foramen ovale to the left atrium, then towards the left ventricle, left atrium to left ventricle and to the aorta, and heart muscles and brain को from the aorta blood जो है वो supply करेगा. Right atrium of the heart through the superior vena cava जो है वो receive करते हैं body से waste blood को. Most of this blood is bypassed or shunted away from the lungs through the ductus arteriosus to the aorta. Most of the circulation to the lower body is supplied by blood passing through the ductus arteriosus. Ductus arteriosus जो है वो कनेक्शन होता है हमारे पास सिस्टमिक अयोटा का. हमारे पास जो पल्मोनरी आर्टरी के साथ एक कनेक्शन होता है जो सिस्टमिक अयोटा से, क्योंकि उसका प्रेशर ब्लड में उसका जो ब्लड प्रेशर वो ज़्यादा होता है तो वहाँ से शंट हो जाता है ब्लड फ्रॉम द अयोटा टू द पल्मोनरी आर्टरी, और वो वहाँ से लंग्स को ब्लड सप्लाई होता है. मोस्ट ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ द लोअर बॉडी इज सप्लाइड बाय द ब्लड पासिंग थ्रू द डक्टस आर्टरियोसिस, एंड दिस ब्लड देन एंटर्स द अम्बिलिकल आर्टरीज एंड फ्लो इनटू द प्लेसेंटा. Next is the circulatory changes at birth. Before birth, high pulmonary vascular resistance is there due to the collapsed fetal lung. Then greater pressure in the right side of the heart and the pulmonary arteries. At the same time, the free flowing placenta circulation and the ductus arteriosus produce a low vascular resistance in the remainder of the fetal vascular system. वैसे normally जो है हम जो एक हार्ट सर्कुलेशन होता है उसमें लेफ़्ट साइड का प्रेशर जो वो ज़्यादा होता है क्योंकि उसको पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करना होता है. बट जब एक फीटस होता है उसके ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है उस टाइम पर जो है वो उसका जो राइट साइड का होता है या पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो होती है वो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता क्योंकि उसके लंग्स में इतना ब्लड की ज़रूरत नहीं होती है. उसको लंग्स को जो है वो ऑक्सीजन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मदर की बॉडी से ऑक्सीजन जो ब्लड है वही सप्लाई होके आता है. उसको सिर्फ बाईपास करते हैं लंग्स तक और फिर वो लेटर ऑन बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है. विद द फर्स्ट ब्रीथ द लंग्स आर एक्सपैंडेड. With the first breath, the lungs are expanded and increased oxygen causes pulmonary vasodilation. Pulmonary pressure starts to fall as systemic pressure starts to rise. तो जैसे ही lungs expand होते हैं with the first breath of the baby, तो वहाँ पे क्या होगा, pulmonary pressure जो है वो कम होना शुरू हो जाता है और systemic pressure increase हो जाता है. Normally the foramen ovale closes as the pressure in the left atrium exceeds the pressure in the right atrium. So with the changes in this pressure towards both the atrium, the foramen ovale closes. सो अभी मैं आपको ये जो फीटल सर्कुलेशन है ये 3D एनिमेटेड वीडियो की हेल्प से
और अच्छे से क्लियर करवाती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे प्लेसेंटा है जिसमें अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ पे शो की जा रही है, और जो ब्लड है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही जो है फ्रॉम द अम्बिलिकल वेन जो है वो पास ऑन होगा बेबी के लिए, ब्लड फ्रॉम द अम्बिलिकल वेन। जो लंग्स हैं वो कोलैप्स्ड होते हैं, इसलिए जो ब्लड है वो ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड होता है, सो देयर इज़ नो नीड टू फ्लो थ्रू द लंग्स। फोरामेन ओवेल एक होल है इन द मिडल वॉल ऑफ द सेप्टम ऑफ द हार्ट विच अलाउ द ब्लड टू फ्लो फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड aorta to the body. So this is the foramen ovale. You can see how the blood circulate, and there is another opening or another connection, that is the ductus arteriosus. तो उसकी हेल्प से भी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। एंड फाइनली द डक्टस वीनस which is the connection of the umbilical vein serves as the shunt or bypass which allows the blood to the placenta and to the immature liver and directly to the inferior vena cava. So this is how the blood flow in the fetus. I hope आपको इस वीडियो के थ्रू क्लियर हुआ होगा fetal circulation. So this is all about my today's topic, fetal circulation. I hope आपको टॉपिक क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको नॉर्मल हार्ट सर्कुलेशन के बारे में बताऊंगी, और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको ऐसे ही पीडियाट्रिक नर्सिंग के लेक्चर सुनने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एसएस पीडियाट्रिक्स। थैंक यू।